This is Jayant Majan, Assistant Professor, ITM College, Dehradun. Today the subject is International Business and the topics which we will cover in these slides is outsourcing, strategic alliances, mergers, acquisitions and the role of information technology in international business. So let's start. First of all, what is the meaning of outsourcing? With globalization flattening the world, it has become increasingly important for companies to utilize outsourcing firms in India to stay competitive. Now, India is the best outsourcing destination for technical work when compared to other outsourcing locations. So, there are 7 reasons why a foreign company must seriously consider outsourcing to India. मतलब कोई फॉरेन कंपनी है which is based in some other countries such as US or UK, तो it can outsource some part of its work to an Indian company. Okay, and for that the Indian company will charge a fees. So that is known as outsourcing. तो वो जो वर्क है जो फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को आउटसोर्स करा है वो वर्क फॉरेन कंपनी खुद नहीं कर रही है, वो इंडियन कंपनी से करा रही है, क्योंकि उसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद इंडियन कंपनी उस काम को सस्ते में करके दे रही होगी, और अगर वही कंपनी फॉरेन कंपनी अपने खुद के एम्प्लॉय से अगर वो काम करवाता है तो उनको ज़्यादा महंगा पड़ता है. इस वजह से दे हैव आउटसोर्स्ड द वर्क टू एन इंडियन कंपनी. तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर बोथ द कंट्रीज़, क्योंकि इसमें जो फॉरेन कंपनी है उसको भी फ़ायदा मिल गया, उसको कम कॉस्ट पे काम मिल गया, प्लस जो इंडियन कंपनी थी उसको भी प्रॉफिट हो गया. नाउ देयर आर 7 रीजंस व्हाई अ फॉरेन कंपनी मस्ट सीरियसली कंसिडर आउटसोर्सिंग टू इंडिया. दीज 7 रीजंस आर: India can help you achieve more with less. Almost every business is under constant pressure to produce huge volumes of work and generate more revenue with their existing staff. By outsourcing to India, you can use your current staff to manage the outsourced team and projects, thereby increasing the output of each member. Only outsourcing to India can result in a marked improvement in your company's productivity. Then India can give you access to educated professionals with skill sets. When you outsource to India, you will be working with people who are highly educated, often holding degrees from some of the world's finest universities. Though language and cultural barriers exist, but you need not worry about when you outsource to India, as Indian professionals speak better English than other leading outsourcing destinations. तो इंडिया में प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ले रखी है, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. तो इन ट्रेंड प्रोफेशनल्स से काम करवाना एक फॉरेन कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, और वो भी कम प्राइस पे. तो इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी इंग्लिश बाकी कंट्रीज़ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बेटर होती है, दैट इज़ देयर. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिया के प्रोफेशनल्स उनको एक अच्छा क्वालिटी वर्क करके देंगे, वो भी कम पैसों में. तो दैट इज़ वाई अ फॉरेन कंपनी इज़ इंटरेस्टेड टू आउटसोर्स इट्स वर्क टू इंडियन कंपनी. India can help you focus on core business competencies. As your business grows, you will need to support your increasing customer base or research and test new products while continuing your current growth rate. तो मतलब ये है कि अगर तुमने अपना काम, किसी फॉरेन कंपनी ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया इंडिया को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अब उस काम के बारे में उस फॉरेन कंपनी को सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो दे कैन स्पेंड देयर टाइम नाउ on other matters such as how to increase their customer base or any kind of research which is going on. And India can help your company become more scalable, since business is often unpredictable with its own peak and slow seasons. You may not always have the right number of staff members with the appropriate skills for your current workload. तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉरेन कंपनी है उसके पास हो सकता है कि वो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हो ही ना, जिससे कि वो अपना एक पर्टिकुलर काम कर सकें. तो ऑब्वियसली बात है कि वो स्किल्ड इंडिविजुअल्स को ढूंढेंगे किसी और कंट्री में ताकि वो उनका काम करके दे सकें. इंडिया ऑफर्स बेटर प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज़ देयर, क्योंकि जिस प्राइस पे इंडिया के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो काम करके देंगे किसी फॉरेन कंपनी को, वो काफ़ी कम प्राइस होगा और फॉरेन कंपनी को वो चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा. उनको कम पे करना पड़ेगा इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को और उनका काम भी हो जाएगा. Then India can help you determine appropriate staff levels. Now, इंडिया को अगर कोई फॉरेन कंपनी आउटसोर्स कर रही है तो फॉरेन कंपनी जो है वो सीरियसली ये चीज़ रिगार्ड कर सकती है कि भाई हमें अपना जो स्टाफ है उनको राइट साइज़ करना है या डाउन साइज़ करना है, क्योंकि जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको कंपनी से हटाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ आउटसोर्स्ड टू इंडिया. तो वहाँ के जो लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उस कंपनी के, उनको डाउन साइज़ या राइट साइज़ कंपनी कर सकती है आफ्टर
they outsource their work to India. Outsourcing to India is easy. बहुत कम गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं या रूल्स होते हैं रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग, तो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से फ्रीडम दे रखी है इंडियन कंपनीज को कि वो आराम से दूसरी कंट्री से आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर सकें. देयर आर वेरी फ्यू रेगुलेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. तो इंडियन कंपनीज को कोई दिक्कत नहीं होती ये काम उठाने में, और फॉरेन कंपनीज को भी कोई दिक्कत नहीं होती, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता इफ दे वांट टू आउटसोर्स देयर वर्क टू इंडिया. The second topic of these slides is joint ventures or strategic alliances. Now, joint venture का मतलब ये है कि एक कंपनी जिसने जो मर्ज हुई किसी और कंपनी के साथ और एक थर्ड कंपनी बन गई, दैट इज जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस. जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप है, वो इंडिया की कंपनी है, सन लाइफ कंपनी कनाडा की है. दोनों ने जॉइंट वेंचर करा और फॉर्म करी एक थर्ड इंडिपेंडेंट कंपनी जिसका नाम है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. अब वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस सर्विसेज टू द इंडियन सिटीजन्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ जेवी. नाउ मर्जर्स का मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो कि इधर एब्जॉर्ब हो गई किसी और कंपनी में, दैट इज मर्जर, और या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई और दोनों कंपनीज की आइडेंटिटी खत्म हो गई और एक थर्ड कंपनी बन के निकली, वो भी होता है मर्जर. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में एब्जॉर्ब हो गई है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. And if both the companies lose their identity and a third company is formed, that is known as amalgamation. Now, acquisition और takeover का मतलब ये होता है कि एक कंपनी ने most of the shares of a particular company purchase कर लिए हैं. For example, there is a company A and there is a company B. Both companies are located in different countries. तो कंपनी A ने क्या करा, मोस्ट ऑफ द शेयर्स परचेज कर लिए कंपनी बी के. अब कंपनी ए का जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका कंप्लीट कंट्रोल है कंपनी बी पे. नाउ दे हैव अ चॉइस, दे कैन ईदर रिमूव द डायरेक्टर्स विच आर वर्किंग इन द कंपनी बी एंड रिप्लेस देम विद देयर ओन डायरेक्टर्स, और दे कैन लेट देम कंटिन्यू. ओके, तो दिस टाइप ऑफ टेक ओवर इज नोन एज एक्विजिशन. लाइक 2007 में यूरोप में मित्तल स्टील ने अक्वायर करा था आर्सेलर कंपनी को, और उसके बाद उनके जो मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स थे उनको हटा के अपने मैनेजमेंट टीम, अपने डायरेक्टर्स उन लोगों ने अपॉइंट करे थे उस कंपनी में. तो दैट इज नोन एज टेक ओवर और एक्विजिशंस. नाउ थर्ड टॉपिक ऑफ आवर स्लाइड्स इज रोल ऑफ आईटी इन इंटरनेशनल बिजनेस. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करने में. नाउ कम्युनिकेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, वी ऑल नो अबाउट दैट. ओके, अगर हमें कम्युनिकेट करना है किसी और कंपनी के साथ, किसी और रेसिडेंट के साथ, किसी और इंडिविजुअल के साथ जो किसी और कंट्री में है, देन वी कैन डू दैट बाय यूजिंग वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वेरियस कम्युनिकेशन वेज. क्योंकि टुडे you can do that by just calling them. You can make go for a video conferencing. You can conduct a meeting in Google Meet or Zoom app. Okay, so there are a lot of ways using which you can use the internet or information technology, and you can use them to communicate with people of another country. That is the role of IT in international business. For example, there is an exporter and there is an importer. So इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का रोल ये होगा कि दोनों आराम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी बिजनेस डीलिंग को आगे बढ़ा पाएंगे. नाउ ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग मेड इट possible to hire employees who live in other countries by cloud providers such as Amazon Web Services. As a result, companies have more options for finding key talent and saving money since they won't need to build a physical office for these remote employees. Now, advancements in manufacturing. Developments such as 3D printing and robotics have transformed how companies around the world manufacture products. तो टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि वी हैव ऑप्शंस सच एज 3D printing and robotics, and 3D printing and robotics can be used in order to advance your own company or firm, right? Now, supply chain management. The use of sophisticated supply chain management software has made it easier to manage a global supply chain rather than just source products and supplies domestically. Companies may do this to take advantage of lower costs and improved efficiency, as well as to have more variety in what they can purchase from international companies.
Now, information technology and international marketing. Now, we all know about international marketing. Okay, information technology such as internet can be used to market your goods and services on an international level. Okay, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट के थ्रू तुम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, you can use Facebook and you can post an ad of your product in the Facebook, और वो ad सिर्फ इंडिया के ही नहीं किसी और कंट्री के सिटीजन्स भी देख सकेंगे फेसबुक पे. इन दिस वे यू आर डूइंग व्हाट? इंटरनेशनल मार्केटिंग बाय यूजिंग इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So that is the role of information technology to support international business. Thank you.